Morning to everyone. This is the sum we will be doing today. Prepare departmental trading and profit and loss account and general profit and loss account from the following particulars. Now, what is general profit and loss account? I had explained you while we were in the first lecture of this explanation of departmental accounts. The general profit and loss account is the account where we will put those expenses which cannot be allocated in any department. तो ऐसे expenses जो कोई भी एक department में हम नहीं डाल सकते, डिवाइड नहीं कर सकते बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, वैसे एक्सपेंसेस को हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताएंगे. दोस एक्सपेंसेस which cannot be allocated between departments will be transferred to general profit and loss account. So now here uh, let us discuss this question. Particulars A, B and C. There are three departments. Purchase of all the three department is given, sales is given, wages is given, closing stock is given, and salary is given. So as I told you, general profit and loss account. General profit and loss account, I have highlighted it. General profit and loss account is a account where we will be transferring expenses which cannot be allocated between departments. जो एक्सपेंस जो डिपार्टमेंट में डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे एक्सपेंसेस को हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे. देन वी हैव रेंट, insurance, motor van expense, advertising, travel expense, carriage inward, discount received, bad debts, audit fees, discount allowed. These expenses are given in the total, so we will have to divide it among the departments in appropriate ratio, using appropriate ratios. So there was no opening stock. Opening stock is not given in the question because there is no opening stock. The floor space occupied by three departments A, B and C is in the ratio of 3:2:1. So floor space में क्या allocate करेंगे? Floor space में we will be allocating rent. रेंट फ्लोर के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से पे करेंगे. सो दिस फ्लोर स्पेस इज बीन गिवन टू एलोकेट रेंट. रेंट को एलोकेट करने के लिए फ्लोर स्पेस इज गिवन. Then it is told that motor van expenses are to be divided equally between B and C. So ये जो motor van expenses है 4,400, this has to be divided between B and C at equal ratio. B and C at equal ratio. इसके बाद क्या दिया है? The insurance premium is on a comprehensive policy and cannot be allocated. They say that this insurance is a very huge policy, comprehensive policy, and this cannot be allocated between departments. तो ये general profit and loss account में जाएगा. This insurance will come in the general profit and loss account. Then what we have? Then what is given? बचा क्या? Advertising. It is related to sales. Traveling expenses will be allocated according to sales ratio, selling ratio, because traveling, advertisement, carriage inward will be allocated as per purchase ratio.
कैरेज इनवर्ड किससे रिलेटेड रहता है? परचेज से रिलेटेड रहता है, सो परचेज रेशियो में डिवाइड होगा। देन डिस्काउंट हम कब रिसीव करते हैं? when do we receive discount? When we purchase something, so discount received also will go on purchase ratio। बैड डेट सेल्स करते हैं तो होता है डिस्काउंट अलाउड, सेल्स करते हैं तो होता है, बट ऑडिट फीस इज नॉट रिलेटेड टू सेल्स परचेज। ऑडिट फीस का कुछ भी डिविजन नहीं दिया है, तो ऑडिट फीस को भी हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिवाइड करेंगे, बिकॉज ऑडिट तो पूरे बिजनेस का होगा, ऑडिट डिपार्टमेंट वाइज से ज्यादा बिजनेस का होगा, तो इसको भी डिवाइड करने के लिए अलग से रेशो नहीं दिया है। अगर स्पेसिफिक रेशो वुड हैव बीन गिवन टू एलोकेट ऑडिट फीस कि ये रेशो में करो, या बोलते सेल्स रेशो में करो, देन वी वुड हैव divided it amongst into divided it by sales ratio. Now nothing is told, so audit fees will also come in general profit and loss account। Audit fees also will come in जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड डिस्काउंट कब हमें अलाउ करते हैं? व्हेन डू वी अलाउ डिस्काउंट? व्हेन वी सेल, so discount allowed will be allocated in the sales ratio। Now let us start the sum। The first line in the additional information says there is no opening stock, so what we have to prepare is the name of the business given, name of the business is not given, so directly we will prepare trading and profit। Now which is it? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट कौन सा है ये? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द ईयर गिवन, तब के लिए नो, दैट इज ऑल्सो नॉट गिवन। फॉर year ended, now not given, so I cannot write। The opening stock is not given, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली या तो ओपनिंग स्टॉक नील लिख सकते हैं, या तो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ परचेसेस, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, दिस परचेस इज गिवन। हाउ टू डिवाइड इज गिवन, 90,000, 60,000 and 30,000, this is given। Now after purchase, sales is given by sales, this is given। Sales is how much? 1,60,000, 1,28,000 and 64,000। Now after this, wages is given, so two wages, this is also given, so we will write given। How much it is? 30,000, 24,000 and how much is given? 20,000। Now after wages, closing stock दिया हुआ है, by closing stock, by closing stock, this is given। How to divide between department is given, so 44,000, 32,000 and 28,000, this is given। Now next one is salary, salary will come in the P&L account, so two salaries, salaries is also given, how much? 13,000, 7,000 and 9,000। Now what is the next one? Rent, rent के लिए
फ्लोर स्पेस दिया है, रेंट जगह के हिसाब से चार्ज होगा, इतना जगह इतना फ्लोर स्पेस, ए डिवीजन सॉरी ए डिपार्टमेंट is having utna rent A will, where B department is occupying this much of floor space, so that rent B department will bear. C department is occupying so much floor space, so that rent C department will bear. So यहाँ पे floor space is given 3 is to 3, 2 is to 2. So accordingly divide 7,000, 7,000 को 3 प्लस टू इज 7. सो क्या आएगा 7,000 into 3 into 3 upon 7 is, how did I get 7? I got the 7 from 3 plus 2 plus 2 is 7. 3 plus 2 plus 2 is 7. So 7,000 into 3 upon 7 is 3,000. 7,000 into 2 upon 7 is 2,000. And 7 upon 2 upon 7 is 2,000. Now insurance तो comprehensive policy है, cannot be allocated anywhere, so it will not come in here. Insurance will come where in the general profit and loss account. ऐसे expenses को जिसको कहीं पे भी allocate नहीं कर सकते will come in the general profit and loss account. What is the amount of insurance? 4,700. So I have put it in the general profit and loss. Now we have motor van expense. Motor van expense also will come in the profit and loss account. To motor van expense. Motor van expense. Motor van expense. See, motor van expense के बारे में they have given motor van expense के लिए there is a point number C which says that motor van expenses are to be divided equally between department B and C. So motor van expense are to be divided between B and C. So it is given in the question that how it has to be divided equally between B and C. So 4,400 divide by 2, दो डिपार्टमेंट को चार्ज करना है, so it will come 2,200. 2,200. It will not come in A department, only in B and C. And about insurance, it is given in the question that insurance premium is a comprehensive policy and cannot be allocated. ये डिपार्टमेंट में डिवाइड नहीं कर सकते ऐसे एक्सपेंसेस को जिसको कोई भी डिपार्टमेंट में डिवाइड नहीं कर सकते, which cannot be allocated among the departments, will be shown under general profit and loss account. So general profit and loss account में हम ऐसे expenses को दिखाएंगे जो department में divide नहीं हो सकता, which cannot be allocated among departments, will be shown under general profit and loss account. So insurance को हमने general profit and loss account में बताया. इसके बाद motor van के बाद we have advertising. Advertising is always related to sales. तो सेल्स रेशो में आना चाहिए, तो सेल्स रेशो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो सेल्स रेशो को फाइंड आउट करने के लिए we will go to the working note and we will find out the sales ratio. So sales ratio. So sales ratio क्या है, उसके लिए हमें all the three department का sales चाहिए. What is the sales of all the three department? It is 1,60,000.
1,60,000, 1,28,000 and C department का sales is how much? 64,000. Now how many zeros are common here? 3 zeros are common. इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, तो 3 जीरो कैंसिल करने के बाद कितना नंबर बचता है? यहाँ पे 1,60,000 में 3 जीरो कैंसिल किया तो 1,60,000 इज लेफ्ट. 128,000 में से 3 जीरो कैंसिल किया तो 128 इज लेफ्ट. और 64,000 में से 3 जीरो कैंसिल किया, सो हाउ मच इज लेफ्ट? 64 इज लेफ्ट. सो नाउ टेल मी, ये 3 कोई टेबल में आता है, इसको और छोटा कर सकते हैं. 64 twos are this 64 twos are 128 and how much is 160 आता है 64 के टेबल में. Does 160 come? 128 तो आता है, लेकिन क्या 160 comes under in the 64 table? Just check. No, 160 तो नहीं आता. सो हम लोग 64 के इसमें नहीं इसको कम कर सकते, बट 8 के टेबल में जस्ट चेक. इन द 8 टेबल जस्ट 128 कम्स और व्हाट? इसको छोटा करने के लिए 8 के टेबल, हाँ 8 के टेबल में 16 टाइम्स में 128 आता है, तो 160 ऑल्सो कम्स. 20s आर 8 20s आर, सो 8 20s आर 8 20s आर 160 बराबर. तो ये 8 के टेबल में जाता है और ये भी 8 के टेबल में जाता है. 128 also comes in the 8 table 16 times. 128 comes 8 के टेबल में, 8 16s are, and 64 also comes in the 8 table. करेक्ट. 64 कितने में आता है? 8 8s are 64. सो इसको और छोटा कर सकते हैं. 2 के टेबल में और जाता है ना, ये और कम होता है. 2 10s are 20, 2 8s are 16 and 2 4s are 8. और छोटा भी कर सकते हैं इसको 2 के टेबल में. 2 5s are 10, 2 4s are 8 and 2 2s are 4. तो 2 के टेबल में इसको और छोटा किया, लेकिन अब इससे छोटा नहीं होगा. 5 4 and 2 आ गया है, इससे छोटा नहीं होगा. तो ये तुम लोग को है ना इतना कम नहीं करना है, तो सिर्फ जीरोस कैंसिल करके भी तुम लोग रेशो निकाल सकते हो. 160:128:64, दैट ऑल्सो कैन बी योर रेशो. बट वी हैव व्हाट वी हैव डन, हमने नंबर को और छोटा किया ताकि हमें इजी पड़ जाए. तुमको छोटा नहीं करना. यू हैव द कैलसी, नो नीड टू डू इट. ओके. तो सेल्स रेशो क्या मिला? 5:4:2. दैट इज 5/11, 4/11, 2/11. 11 कैसे मिला? 5 + 4 + 2 is 11. So motor advertising का how much is advertising? Advertising is 6,600. इसको करो 6,600 into 5/11 करो. 6,600 into 5/11. How much are you getting? 5/11. So you get 3,000. Correct. 3,000 मिला. 6,600 into 4/11. 4/11 you get 2,400 and 6,600 into 2/11 करो. 2/11 you get 1,200. After advertising we have to ट्रैवलिंग एक्सपेंस. ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी सेल्स रेशो में आएगा, बिकॉज ट्रैवल भी हम सेल्स के लिए करते हैं, सेल्स करने के लिए. तो 3,300 को
5/11 करो, what do you get? 1500. And here what do you get? 1200. Here what do you get? 600. And now ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद कैरेज इनवर्ड इज रिलेटेड टू परचेस, सो ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए। और कौन से रेशो में आना चाहिए? दिस कैरेज इज रिलेटेड टू परचेस ऑफ गुड्स, सो परचेस रेशो में आना चाहिए। सो वी हैव टू अगेन गो टू द वर्किंग एंड फाइंड आउट परचेस रेशो। परचेस रेशो के लिए what we want, A डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट और सी डिपार्टमेंट का परचेस कितना है? 90,000, 60,000 एंड 30,000। सो कितना जीरो सेम है? 4 zeros आर सेम, सो कम किया तो वी गेट 9, 6 एंड 3। 3 के टेबल में तीनों नंबर आता है। 3 3s आर 9, 3 2s आर 6, 3 1s आर 3। तो रेशो है 3:2:1। 3 + 2 + 1 is how much? 6। सो 3/6, 2/6 एंड 1/6 में कैरेज इनवर्ड को डिवाइड करो। सो हाउ मच इज कैरेज इनवर्ड? Carriage inward is 12,000. So 12,000 into 3/6 करो। 12,000 into 3/6, you are getting 6,000. 12,000 into 2/6 करो, you will get 4,000. 12,000 into 1/6 करो, you are getting 2,000. Now discount received, so by लिखेंगे by discount received. This is income and discount हम कब रिसीव करते हैं? when we purchase, जब हम परचेज ना सेल करते वक्त डिस्काउंट अलाउ करते हैं। when we sell the goods, discount is allowed कि ठीक है इतने में ले लो, कम में ले लो। बट when we purchase something, जब हम कुछ खरीदते हैं, we receive discount. So discount received is purchase ratio. So purchase ratio में 3,600 को 3/6 में डिवाइड करो, हाउ मच आर यू गेटिंग? 1,800. Purchase ratio is 3:2:1. So 3,600 into 2/6 करो, you get 1,200. And 3,600 into 1/6, you get 600. Then we have bad debts. बैड डेट्स को सेल्स रेशो में करना पड़ेगा, बिकॉज जब हम सेल्स करते हैं तो बैड डेट्स होने का चांसेस है। क्रेडिट में सेल करते हैं तो बैड डेट्स होने का चांसेस है। सेल्स रेशो क्या है? 5:4:2, 5 + 4 + 2 is 11। तो बैड डेट्स है 1100, 1100 into 5/11, तो 500 आ जाएगा। 1100 into 4/11, 1100 into 2/11। सो इसके बाद वी हैव दिस ऑडिट फीस। ऑडिट फीस cannot be allocated in among 3 डिपार्टमेंट। ऑडिट फीस सेल से तो रिलेटेड नहीं है, सेल के हिसाब से हम ऑडिटिंग नहीं करते। अकाउंट्स का वेरिफिकेशन that is related to business and not according to department. If any specific information was given कि ऑडिट फीस को ये रेशो में डिवाइड करो या ऑडिट फीस को सेल्स रेशो में डिवाइड करो, ऑडिट फीस को ऐसे डिवाइड करो, तो हम वैसे करते। बट नथिंग इज गिवन, नथिंग, no specific information is given about audit fees. So audit fees will come in the general profit and loss account. So audit fees को expense है, so debit side में आएगा। Audit fees को we will show in the general profit and loss account. How much is the amount of audit fees? 1,800.
सो ऐसे एक्सपेंस जिसको कहीं पे भी चार्ज नहीं कर सकते, जिसको हम डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड नहीं कर सकते, those expenses have to be shown under general profit and loss account. So discount allowed, अगेन सेल्स रेशियो में डिवाइड करो, 5:4:2. सो हाउ मच इट इज, 2200 into 5/11 करो, हाउ मच यू आर गेटिंग, 5000. So it is getting one, you are getting 1000, 2200 into 4 divided by 11, 2200 into 2 divided by 11. So all the expenses have been divided. Now prepare gross profit and net profit. Gross profit कितना है, net profit कितना है बताओ. This becomes 2,04,000. This becomes सॉरी कितना हो जाएगा ये, 1,60,000. एंड लास्ट वन 64,000. This becomes 92,000. सो सेम यहाँ पे भी लिखना है, 2,04,000, 1,60,000 and 92,000. Now what is the GP? Just give me the gross profit. Gross profit carried down. Is it coming 78,000, 72,000 and 40,000? 78,000, 72,000 and 40,000. Very good. Now this we will transfer. टू ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट. टू ग्रॉस प्रॉफिट will become by gross profit. 78,000, 72,000 and 40,000. नाउ सी नेट प्रॉफिट ही है या कोई डिपार्टमेंट में नेट लॉस भी है? इज इट ओनली नेट प्रॉफिट और इट इज नेट लॉस ऑल्सो? नेट प्रॉफिट ही है सब जगह. तो दिस बिकम्स 73,200. दिस बिकम्स 40,600. सो नाउ लेट अस सी how much net profit we are getting. 73,200 and 40,600. net profit कितना है, 57,800, 57,200 and last one. Is it correct? To net profit carried down. जस्ट लास्ट वन का फिर से एक बार चेक करो. 57,800, 57,200 and last one. Just do it again whether you are getting the same answer. When I am doing 9,000 plus 2,000 plus 2,200 plus 600 plus 200 plus 400, this is 14,400 minus 40,600. How much are you getting? 25,000. So with this sum is done. See here.
हियर व्हाट इज लेफ्ट नाउ, ये प्रॉफिट को जो नेट प्रॉफिट आया है उसको हम क्या करेंगे, टू नेट प्रॉफिट हम बोलेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, by net profit brought down. For general profit and loss account also is there. डिपार्टमेंट इज ए, बी एंड सी, तीनों में प्रॉफिट है, तो इधर लिखेंगे 57,800, 57,200 एंड 25,000. सो इनका टोटल कितना आता है, जैसे ये तीनों का टोटल कितना आता है, ये तीनों का टोटल हाउ मच आर यू गेटिंग, तीनों को ऐड करो, यू आर गेटिंग 1,40,000, 1,40,000. एंड अभी हम लोग लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, इसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट, ये इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट. चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते, ये प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होगा, दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट. एंड हाउ मच आर यू गेटिंग, हाउ मच आर यू गेटिंग, ये सब माइनस करके, ऊपर का माइनस करके, हाउ मच आर यू गेटिंग, 133,500. आर यू गेटिंग दिस अमाउंट, 133,500. सो क्रेडिट से डेबिट साइड 4,700 एंड 1,800 माइनस किया 1,40,000 से, सो वी आर गेटिंग 133,500. विद दिस सम इज डन. This is the next sum we are doing now. From the following balances, prepare departmental trading and profit and loss account for the year ended 31/12/2013. See, in the exam you will be having multiple choice questions, मतलब sums जो आपको नहीं, पूरा sum नहीं आएगा एग्जाम में, but there may be small objectives based. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेल्स रेशो दिया है या आपको सेल्स रेशो फाइंड करने बोलेंगे, दो अमाउंट में डिपार्टमेंट का सेल्स रेशो क्या रहेगा, डिपार्टमेंट का परचेस रेशो क्या रहेगा, अगर सपोज डिस्काउंट अलाउड है तो उसको कौन से रेशो से डिवाइड करना चाहिए, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो उसको कौन से रेशो से डिवाइड करना चाहिए, परचेस रेशो, सेल्स रेशो, फ्लोर स्पेस रेशो, मतलब दैट वे ऑप्शंस विल बी गिवन, यू विल हैव टू सेलेक्ट. मतलब पूरा सम विल नॉट कम इन द एग्जाम, बट स्मॉल पार्ट्स ऑफ द सम विल कम. सो अगर आप ये सम समझ जाओगे तो आप वो ऑब्जेक्टिव्स ऑटोमेटिकली सॉल्व कर पाओगे. सो दैट्स व्हाई दिस फुल सम्स विल नॉट कम. Our expenses which are not which cannot be allocated in any department is shown in जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑप्शन में रहेगा, तो आपको वो सेलेक्ट करके लिखना है. सो ऐसे that type of questions can come, means objective multiple choice questions will come. Your answer will be there in the option, but you have to select it and write. So ऐसे type के questions will come. So now let us begin with our sum. See, I guess in the next lecture हमारा departmental accounts हो जाएगा. Then we will go to the last chapter. Means what I am doing, I am trying to cover everything which can come in the objectives. So today I will also be giving you some homework sums after the lecture. So here opening stock is given. ओपनिंग स्टॉक दोनों डिपार्टमेंट का दिया हुआ है, परचेज दोनों डिपार्टमेंट का दिया हुआ है, सेल्स दोनों डिपार्टमेंट का दिया हुआ है, वेजेस दोनों डिपार्टमेंट का दिया हुआ है. देन व्हाट इज गिवन, सैलरी, लाइटिंग, हीटिंग. सैलरी, लाइटिंग, हीटिंग इज देयर. डिस्काउंट अलाउड इज देयर. डिस्काउंट रिसीव्ड इज देयर. एडवर्टाइजिंग इज देयर. कैरेज इनवर्ड इज देयर. And then what else is given?
फर्नीचर फिटिंग इज अ असेट, असेट दिया हुआ है पीएनएल अकाउंट में तो असेट नहीं आएगा, असेट तो बैलेंस शीट में आता है. देन रेंट रेट एंड टैक्सेस इज गिवन. Now the following information also is also provided. There is an internal transfer of goods from department X to department Y, rupees 2000. There is internal transfer of goods from department X to Y. Means कौन कौन से डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं? डिपार्टमेंट एक्स ट्रांसफर कर रहा है डिपार्टमेंट वाई को. जब आप बाहर, आप कभी कभी आप इंटर डिपार्टमेंट से भी ट्रांसफर कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ परचेसिंग फ्रॉम आउटसाइड, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर परचेसिंग फ्रॉम one department to another. So here tell me who is transferring to who. Internal transfer of goods from department X to department Y. मतलब department X goods transfer कर रहा है department Y को. तो who is receiving the goods? Y. Who is transferring the goods? X. तो जो ट्रांसफर करता है उसके लिए सेल्स होता है और जो रिसीव करता है उसके लिए परचेस होता है. तो यहाँ पे द वन हु इज ट्रांसफरिंग द गुड्स, दैट इज दिस डिपार्टमेंट एक्स, वो उसके सेल्स साइड में लिखेगा. और सेल्स किधर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड. डिपार्टमेंट एक्स ने ट्रांसफर किया, डिपार्टमेंट एक्स ने ट्रांसफर किया डिपार्टमेंट वाई को. तो डिपार्टमेंट, आपको ये समझना है कि किसके लिए परचेस है और किसके लिए सेल है. इट इज सेल टू डिपार्टमेंट एक्स एंड इट इज परचेस टू डिपार्टमेंट वाई. समझ में आ रहा है? इंटरनल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब एक्स ने ट्रांसफर किया वाई को. तो जिसने रिसीव किया, उस जो रिसीव करता है उसके लिए खरीदना है, और जिसने ट्रांसफर किया उसके लिए बेचना है. बेचना मतलब सेल्स, खरीदना मतलब परचेस. सो दैट वे वी विल हैव टू अंडरस्टैंड. परचेस किधर आता है? डेबिट साइड में. सेल्स किधर आता है? क्रेडिट साइड में ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. तो ये हमें समझना है. इसके बाद दे से द आइटम्स रेंट रेट्स, इंश्योरेंस, लाइटिंग, हीटिंग, सैलरी एंड कैरेज इनवर्ड टू बी अपोर्शनड 2/3 टू डिपार्टमेंट एक्स एंड 1/3 टू डिपार्टमेंट वाई. इसके बाद बोलते हैं एडवर्टाइजिंग जो है उसको इक्वली अपोर्शन करो. अपोर्शन मीन्स डिवाइड. डिवाइड एडवर्टाइजिंग इक्वली. Divide advertising equally. Then we have discount allowed and discount received are apportioned on the basis of departmental sales and purchase. Discount allow कब करते? जब सेल करते. डिस्काउंट रिसीव कब करते? जब परचेस करते. तो सेल्स रेशो और परचेस रेशो में हमें डिस्काउंट अलाउड और रिसीव को डिवाइड करना है. फिर क्या दिया है? डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग. मतलब फर्नीचर एंड फिटिंग नहीं आएगा, उसका डेप्रीसिएशन आएगा. उसका डेप्रीसिएशन कितना है? 10%. किस पे चार्ज करना है? 3/4 विल बी चार्ज्ड. 3/4 विल बी चार्ज्ड. अगर तुम लोग को ये दिख रहा नहीं है तो 3/4 विल बी चार्ज्ड टू डिपार्टमेंट एक्स एंड 1/4 विल बी चार्ज टू वाई. तो 4 हिस्सा करेंगे तो रेशो तो 3:1 है. उसमें डेप्रीसिएशन को एक्स में 3/4 और वाई में ट्रांसफर करना है 1/4. फिर इसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया है डिपार्टमेंट एक्स का 17,000, डिपार्टमेंट वाई का 15,000. नाउ यहाँ पे हमें कंपनी का नाम नहीं दिया है, बट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डेट दिया है, यस, डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for year ended 31st December 2013. तो सबसे पहले कौन सा हमें दिया है? हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है. तो ओपनिंग स्टॉक इज गिवन. सो आई विल राइट हियर गिवन. कितना है? इट इज 15,000 and 14,000.
इसके बाद क्या दिया है, आफ्टर ओपनिंग स्टॉक, आफ्टर ओपनिंग स्टॉक परचेसेस इज गिवन, so we will write purchases, purchases is also given, so we will write given, and इसके बाद कितना गिवन है परचेसेस, 35,000 and 30,000. So this is also done. Now sales is there, by sales, how much is sales, sales का भी it is given, डिपार्टमेंट वाइज कितना ट्रांसफर करना है is given, so 60,000 and 50,000. Now wages भी डिवाइड करके दिया है, टू wages, how much is wages, this is also given, so how much is wages of department X, it is 6,000 and 4,000, so this is also given. Now salaries, salaries दिया हुआ है, salaries के लिए what information is given, salaries comes in the P&L account, so salary के लिए it is given, ratio is given, salary, carriage, inward, lighting, rent, rates and insurance, कैसे divide करना है, 2/3 1/3, so this is given, कौन सा ratio हो जाएगा, 2:1, 2 + 1 is 3, तो 2/3 1/3 में divide करो 9390, divide 9390 into 9390 is salary, तो into 2/3 into 1/3 करो, कितना आता है, how much are you getting salaries, salaries कितना मिल रहा है जरा देखो, how much you are getting, 2/3, 9390 into 2/3, are you getting 6260, are you getting 6260 and 3130, and now after salaries, we have two lighting and heating, two lighting and heating, लाइटिंग एंड हीटिंग के बारे में भी क्वेश्चन में दिया है, दैट 2:1 रेशो में डिवाइड करना है, 2:1 में डिवाइड करो, हाउ मच आर यू गेटिंग, 2/, it is 3,100 into 2/3 and 3,100 into 1/3, आपको रिकर 6,620,666 करके आ रहे, तो इसको 67 लिखेंगे, एंड दूसरे में इट इज 1033. लाइटिंग एंड हीटिंग के बाद हमें दिया है टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड, इसको सेल्स रेशो में डिवाइड करना है, सो सेल्स रेशो कितना है, एक्स डिपार्टमेंट का कितना है, वाई डिपार्टमेंट का कितना है, 60,000 एंड 50,000, 40 कम करो, हमको क्या मिलेगा, 6 और 5, so 6:5 इज सेल्स रेशो, इसमें डिवाइड करो डिस्काउंट रिसीव्ड को, सॉरी डिस्काउंट अलाउड को, सेल्स रेशो में डिस्काउंट अलाउड को डिवाइड करना है, हाउ मच इज डिस्काउंट अलाउड, 650, 650 into 6 divided by 5, 6 divided by 11, 6 + 5 is 11, so 6 divided by 11 कितना आ रहा है डिस्काउंट, so the discount allowed का amount is how much, you know, 650, 650 को डिवाइड करो, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया, डिस्काउंट रिसीव 650 है, डिस्काउंट रिसीव्ड इज 650 एंड डिस्काउंट अलाउड इज, नहीं, ये यहाँ पे सोल्यूशन में दे हैव डन अ मिस्टेक, 6:5, हाउ मच आर यू गेटिंग, से 1 मिनट, हाँ यहाँ पे इन लोग का थोड़ा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में, दिस इज 1 मिनट,
This is 2200 and this one is 650. 650. So tell me 2200 को 6:5 रेशो में डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 1200 and 1000. Are you getting this? नहीं नहीं, there was a mistake. हाँ, ये रेशो में करना है. 2200 is the amount. 2200 is the amount जिसमें हमें 6/11 and 5/11 में डिवाइड करना है. इसके बाद हमें निकालना है बाय डिस्काउंट रिसीव. कौन सा रेशो चाहिए इसके लिए? परचेस रेशो चाहिए. परचेस रेशो के लिए we'll have to go to the working note. So purchase ratio, what is the purchase of x? x का परचेस क्या है? y का परचेस क्या है? x का परचेस है 35,000 and y का परचेस है 30,000. How much zeros are there? 3 zeros are there. 30 ये दोनों एक ही टेबल में आता है. 7s are 6 are, तो 7:6, 7/13 and 6/13 में आप 650, what is the amount? 650. डिस्काउंट रिसीव्ड इज 650. ये रेशो में डिवाइड करो 7:6 का. व्हाट यू आर गेटिंग? 350 and 300. Are you getting 350 and 300? 350 and 300. So इसके बाद what we have in the question, इसके बाद we have advertising. Advertising means sales ratio. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया एडवर्टाइजिंग के लिए, कुछ भी नहीं दिया है तो भी एडवर्टाइजिंग इज सेल्स रेशो. एडवर्टाइजिंग इज सेल्स रेशो. तो सेल्स रेशो में 3680 को डिवाइड करो. सेल्स रेशो क्या आया है हमें? सेल्स रेशो आया है 6:5. 6/11, 5/11. हाउ मच आर यू गेटिंग एडवर्टाइजिंग? सॉरी, देयर इज द इंफॉर्मेशन अबाउट एडवर्टाइजिंग ना. एडवर्टाइजिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि इक्वली डिवाइड करो. पॉइंट नंबर 3 सेस एडवर्टाइजिंग को इक्वली डिवाइड करो. इक्वली मतलब 1:1. इक्वली डिवाइड करो. हाउ मच इज द अमाउंट? 3680 डिवाइड बाय 2 करो. इक्वली डिवाइड करो. 1840 1840. Now after advertising, carriage inward तो ऊपर आएगा. to carriage inward के बारे में कुछ दिया है कि कौन से रेशो में डिवाइड करना है? इज एनीथिंग टोल्ड अबाउट कैरेज इनवर्ड? कैरेज इनवर्ड के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे तो कैरेज इनवर्ड को हम कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे? इज देयर एनीथिंग टोल्ड अबाउट कैरेज इनवर्ड? यस, इट इज टोल्ड दैट 2:1 में डिवाइड करना है. 2:1. सो डिवाइड करो 2:1 में. 2:1 में डिवाइड करो कैरेज इनवर्ड को. हाउ मच यू आर गेटिंग? कैरेज इनवर्ड को 1560 एंड 780. इसके बाद डेप्रीसिएशन निकालना है 10%. डेप्रीसिएशन 10% ऑन 5000. इट इज कमिंग 500. हमें क्या निकालना है? डेप्रीसिएशन निकालना है. टू डेप्रीसिएशन 5000 पे 10%, दैट इज 500. एंड कौन सा रेशो बोला है क्वेश्चन में?
3:1 बोला है, 3/4 एंड 1/4, तो 3:1 रेशो में डिवाइड करो। डिपार्टमेंट एक्स में इट इज 3/4 एंड डिपार्टमेंट वाई में इट इज 1/4, तो 375 एंड 125 इज कमिंग। इसके बाद लास्ट में दे हैव गिवन ये दे हैव गिवन बाय क्लोजिंग स्टॉक। एक और चीज बाकी है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज गिवन हाउ मच इट इज 17,000 and 15,000। वन लास्टिंग रेंट रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रेंट रेट्स टैक्सेस कितना है, कौन से रेशियो में, 2/3 1/3, मतलब 2:1। कितना आएगा रेंट रेट एंड टैक्सेस 2:1 में, it is for how much it is 2,100, so it is coming 1,400 and 700. Now last one is remaining, please, last one is remaining, internal transfer of goods from department X to department Y। मतलब पहले तो देखो कौन सा डिपार्टमेंट ने सेल किया, डिपार्टमेंट एक्स ने ट्रांसफर किया, तो एक्स के लिए सेल है, तो सेल है मतलब एक्स के क्रेडिट में आएगा, और जिसके लिए परचेस है वो डिपार्टमेंट वाई है, जिसके लिए परचेस है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टेलिंग? पहले तो तुम्हें ये समझना है कि किसने ट्रांसफर किया, जिसने ट्रांसफर किया उसके लिए सेल है, और जिसको मिला उसके लिए परचेस है। तो जिसको मिला उसका परचेस किधर होता है, डेबिट साइड में, तो वाई को मिला, वाई के डेबिट साइड में 2,000, और जिसने सेल किया उसके क्रेडिट साइड में है 2,000। इतना समझा? इसके बाद हम लोग लिखेंगे टू इंटरनल ट्रांसफर, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रांसफर। इधर लिखेंगे टू नहीं, यहाँ पे कैसे स्टार्ट होता है क्रेडिट साइड, बाय इंटरनल ट्रांसफर, और इधर लिखेंगे टू इंटरनल ट्रांसफर, इंटरनल ट्रांसफर। डन। नाउ we will close it and prepare, now we will prepare what you say gross profit और net profit। तो इसको क्लोज करो, कितना आ रहा है 65,000, एंड इसको क्लोज करो, कितना आ रहा है 79,000। सो 79,000 एंड 65,000, दिस विल बी, क्या ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन कितना आ रहा है 21,440, और यहाँ पे आ रहा है 14,220। इसको बोलेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। दिस इज हाउ मच 21,440 एंड दिस वन इज 14,220। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21,790, 14,520, ये भी हो जाएगा 14,520 एंड 21,790। तो जो आएगा, आर वी गेटिंग नेट प्रॉफिट बोथ द साइड्स, टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, दिस इज 8,648 and this one is 6,692. So here with this the sum is done. You all know how to calculate gross profit। क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस करेंगे, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस हो सकता है ग्रॉस लॉस, और क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे सब जगह क्रेडिट ही ज्यादा है तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला, डेबिट साइड से क्रेडिट साइड इज मोर, इसलिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मिला। विद दिस सम इज डन।